कोई बात और क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे आज भी। हाँ, उसने उसको कॉल एक किया बार था। हाँ, वो मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं उठा नहीं पाया, है ना? तो कम्युनिकेट कर देना उसे कि है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख ले, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो मुझे कुछ डाउट था मेरे प्रोग्राम में। सर वो मैंने सबमिट किया है, आप अपने लैपटॉप में एक बार उसे खोल देंगे? जस्ट अ सर सेकेंड। मेरे स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम में यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? I can't find many submissions. कौन सा ग्रुप इस पे वर्क कर रहा है? सर मैं और भूमिका। स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम। ओके, सो ऐसा करते हैं, हम लोग अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, है ना? वी विल डिस्कस इन अदर टाइम, है ना? ओके सर। हाँ, सो अभी क्या है, हम लोग क्लास का टाइम इसमें नहीं लेते हैं, हम अलग से डिस्कस करेंगे, देन जब कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल एक्सप्लेन। ओके ओके सर। So let us move on to the next topic. Actually, it is an example of the previous topic only. So this is a program to just show the date, the date which either user has given or the main function has declared. You can see inside main. All of you are able to see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So can you see inside main, in this line and this line, two dates have been given. Okay. So due to these inputs, first D1 is the object. इसमें अभी कुछ नया काम नहीं किया, ओके? ये कहाँ का लोकल ऑब्जेक्ट है? दिस इज द ऑब्जेक्ट। और अभी अगर हम बात करें तो इट इज स्ट्रक्चर वेरिएबल लोकल टू main, right? So it is structure variable local to main, and D2 is also structure variable local to main, right? And here you can see inside structure we have defined a function which is show date. Okay, now what happens, this function, main function, passes two parameters, that is D1, it calls D1 dot show date. तो जैसे ही हमने ये बनाया तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का एक फिजिकल कॉपी बनता है। एक्चुअली दिस इज, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो दिस इज नथिंग बट अ टेम्पलेट, दिस इज ओनली अ टेम्पलेट, राइट? एंड दिस, when you create a variable of that type like this, then what you create, you actually allocate a memory to it. So suppose this is the memory to D2, D1, and this is memory allocated to
D2. And inside this memory, this date, month, year, everything has a unique copy for D1, and the same variables have a unique copy for structure variable D2. Okay. So when you assign these values 13, 12, 19, 20, so 13 goes here, 12 goes here, and 19, 90 goes here. Now what is the order? What is the order of this initialization? So you can see that three values have been passed. Three values have been passed: 13, 12, 19, 20. Okay, 1990. So this would be directly copied into the three integers of the same structure. This is the facility available in C++ only. You can directly initialize the variables of the structure using these parentheses or braces. Fine. So 13, 12, 1990 and 1, 5, 2005. So these values will be assigned respectively to D1 and D2. Fine. Next is you have D1 dot show date. Now from here, what you do, similarly, this D1 also has all the functions which have been declared in the structure. So a copy of show date is for D1 and a copy of show date for D2. Here you can see that the variables, the show date function does not has any new variables. Suppose it has also a variable called D. Okay, so what will happen inside show date? There would also be a variable called D. It will be linked to D1 and the other one will be linked to D2. Are you getting my point? That there is different spaces, different physical spaces inside memory. This is your complete memory, जो आपकी RAM है, and inside RAM, a specific space is allocated for D1 and a specific space is allocated for D2. These are called actual instances. और अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, we will see that these are actually called objects. These are actually called templates. जो डिक्लेरेशन होती है, ये स्ट्रक्ट है, इस स्ट्रक्ट की डिक्लेरेशन इट इज अ टेम्पलेट कि एक जो नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज नथिंग बट अ न्यू डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर, राइट. सो वी विल मोर प्रेफरेबली कॉल इट अ डेटा टाइप. डेटा टाइप कौन सा है, ये आप लोगों को पता ही है. दिस इज अ user defined data type. Okay, now soon we will see that this struct will be replaced by class. Okay, and this class is again a template, and the physical memory allocated like this to the class would be the objects of the class. Okay, so for now in this program, let us remove the extra things. Okay, so here what will happen when D1 dot show date is executed, what happens, the call moves to this show date defined in the D1 space, and a copy of this show date is executed for the values of date, month and year defined by D1. Okay, so what will happen, what it will print, it will simply print 13, 12 and 1990. The first show date will print this, and when it will go to second show date, it will move to this show date, and for this show date the copies of this function and these variables would be referred from the instance D2.
Okay, so similarly the value would be 152,005. So this program works nothing but passing the values to the structure from another function. Now you know that since we have not declared any of the access specifiers, so what will happen? Everything is public. Default is public. Okay, so if you don't write anything, all the variables and all the functions are public. Okay, all of you got this program. This program has nothing new other than these two lines, line number 13 and line number 14, that how to supply value to the structure. फाइन, एक तरीका तो क्या होता, आप इस तरह से सप्लाई करते, d1 डॉट डेट इक्वल्स टू 13, फिर आप लिखते d1 डॉट मंथ इक्वल्स टू 12, d1 डॉट ईयर इक्वल्स टू 1990. Okay, one of the method is this is also valid in C++, but you have another method that you can give directly the values to the structure variables. Fine. Now let us shift to the concept of access specifiers. Here you can see that the variables have been made private. Can you see here? Okay, and the function, there are two functions. There are two functions where who are public. Okay, and why functions are public? Because functions needs to be accessed by other functions. Okay, this main is accessing. Now here if we try to write these three lines, line number 20, 21 and 22, अगर मैं इनको uncomment कर दूं, you will find that this gives an error regarding access. Why the problem exists? Because you can see that date, month and year has now been made private. Okay, and since they are private, they can only be accessed by the functions inside structure. But not by this main, not by outside structure functions. Okay, so we cannot call this, but then अगर हम यहाँ से call ही नहीं कर सकते, तो how to supply the values to the date, month and year? So you can see here, यहाँ पे हमने एक extra function बनाया है, that is this input date. Okay, so यहाँ पे क्या किया, this is not calling, this is calling this function without any parameters. It means it is only calling the public function, and this public function will help us to take the local variables of the structure which are private. Okay, since this d1 is the member of main, so it cannot access variables which are private. This cannot happen. Okay, so similarly when you take input date, so what will happen again, d1 creates a memory, d2 also creates a memory, d1 creates a memory, d2 creates a memory. Suppose here is only d1, okay, d2 is not existing, so d1 creates from this statement, d1 creates a memory. Okay, but this d1 has only access to the functions input date and show date. The variables also exist, date, month and year. Okay, three variables also exist and these two functions exist. But d1, since they are private,
So D1 is not able to access this date, month, and year variable. So it can only access these two functions because they are public, right? So what we'll do, D1 dot input date, and this function will help us to input the values of the dates. So suppose we input 15, 12, 2020. Okay, so from this function, these values will be filled. And the show date function works similarly as it worked earlier. Am I clear in this? Yes, sir. Bolo. So we are clear about this. ठीक है. So access specifiers का क्या ध्यान रखना है, that the private members, the concept that we take from here is that private members cannot be accessed by other functions outside the structure. Okay, we will take this concept to the class also. The same private and public members are also existed there. Okay, and we also use the same rules while accessing the variables of the class. Okay, here another function cannot access the variables which are private. Okay, but the functions who are part of the same structure like this and this, which are part, matlab those functions which are part of the same structure can only access, right? So now let us see the program or the method for type conversion and typecasting. Do you remember in C, typecasting happened like this? What you do, you just place the typecast before the variable. Okay, this happens like that. But in C++ programming, the format is like this. You place the typecast and in the parentheses, you place the variable. Can you remember this? Okay, why the typecasting is required? Can anyone give input? Can anyone give input? Why typecasting is required? Why typecasting is required? बताओ. इतना तो मुश्किल काम नहीं है. You should be knowing this concept, right? Anyone? सर ये वेरिएबल को आराम से चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर अपन ने फ्लोट असाइन किया तो ये इंट कंपाइलर अपने आप चेंज फ्लोट में कर देगा. अगर फ्लोट असाइन किया तो इंट में कंपाइलर चेंज कर देगा. हाँ, वेरिएबल को. सर वेरिएबल को कंपाइलर चेंज कर देगा टाइप कास्ट की हेल्प से. ओके. वेरिएबल को दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर. देखो दो चीजें हैं, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग. टाइप कन्वर्जन कौन करता है? कंपाइलर. ओके, कंपाइलर करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी. लाइक अगर इंटीजर और फ्लोट इंटरैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उन दोनों के अंदर से एक जो है वो फ्लोट में होना चाहिए, यानी कि इंटीजर और फ्लोट का अगर सही आंसर आपको निकालना है तो दोनों ही हैं वो फ्लोट में होने चाहिए, और आंसर है वो भी किस में आना चाहिए? फ्लोट में आना चाहिए. So this is automatic type conversion. So the
the type conversion that is handled by the compiler is actually type conversion, जो automatically होता है, ठीक है. And there is another feature that is called type casting. Fine. So the type casting कौन करता है? टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर करता है. ओके, जो मैंने तुम्हें सिंटैक्स यहाँ पे दिखाए, ठीक है. ये एक एग्जांपल तो यहाँ पे दिख ही रहा है तुम्हें, है ना. एक एग्जांपल हम लोग कल कुछ बना रहे थे, ये मीन वाला, है ना. तो कैन यू सी कि यहाँ पे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, यहाँ पे मैंने 5 और 5 लिया है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट, if I execute it, do you find that answer is correct or not? Okay, आंसर नहीं आया, मैंने कुछ कमेंट कर दिया क्या? Okay, so I have commented it. Okay, so let us see. So can you see the answer? Okay, so answer Yes, is sir. 5. Is the answer is correct? आंसर सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आंसर सही है, सोचो. एनीवन? Yes, sir. 10.0 आना चाहिए. क्या आना चाहिए था? नहीं, 10.0. 10 तो कैसे आएगा? Sorry, 5.0. 5.0 आना चाहिए था. बिकॉज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट, अगर मैंने ये वहां पे फ्लोट के अंदर आउटपुट मांगा है ना, और मैं इसको फ्लोट में प्रिंट कर रहा हूं, तो व्हाट शुड प्रिंट 5.0, बट इट इज गिविंग इंटीजर. व्हाई इट इज गिविंग इंटीजर? बिकॉज यू आर टेकिंग इंटीजर्स. फाइन. एंड व्हाट विल हैपन विद दिस? अभी तो क्या हुआ? You don't, you think that answer is right. Now let us see this. Can you see the answer? The answer is again 5. But actual में आंसर क्या होना चाहिए था? 5.5. 5.5. तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये आई बिकॉज ऑफ इनबिल्ट टाइप कन्वर्जन, है ना. ऑटोमेटिकली जो भी अनकम्पैटिबल टाइप होते हैं, जो सी और सी प्लस प्लस है, वो उनको ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट कर लेते हैं. यानी कि इंटीजर और इंटीजर का इंटरेक्शन हुआ और वो इंटीजर से डिवाइड हुए, ठीक है. तो जो रिजल्ट है वो भी किस में आ गया? ऑटोमेटिकली किस में आ गया? इंटीजर में आ गया, ठीक है. अब मुझे इसका आंसर सही लाना है, ठीक है. तो इसका आंसर सही लाने के लिए मैं सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे हम लोग? इनमें से किसी एक को फ्लोट बना देते हैं, राइट. यहाँ पे सिंटैक्स क्या है? आप जो इसको फ्लोट बनाना है उसको आप किस में रखोगे? पैरेंथेसिस में रखोगे, राइट. एंड जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उसको आप किस में रखोगे? बाहर लिखोगे. ओके, नाउ लेट अस चेक इट अगेन. कैन यू सी द डिफरेंस इन द आंसर? 5.5. So why this answer came? Because integer and integer added here, but they are divided by float. Now when they are divided by float, so the answer would be in the float. So that is why this compatibility of float is maintained. But if you don't write this float, then what happens? If you don't write this float, then what happens? Integer integer interact, then they divide by integer. So the result of this whole is also integer. Okay, so some of you may say, sir, then why don't we do this? Okay,
तो शुड दिस वर्क, काम करना चाहिए क्या? यस क्या सर। किया मैंने, a प्लस बी डिवाइड बाय 2 किया और उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नो लेट अस सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। क्या हो गया ये, दिस डज नॉट वर्क। सर एंड क्यों? व्हाई डज नॉट वर्क, कोई सर एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ सर सर वो जो ए और बी है बताओ। वो तो इंटीजर वैल्यू ही है ना, ए और बी तो ए इंटीजर, एंड बी है, वो इंटीजर है, ओके। तो हम उन्हें और फ्लोट में कैसे जिससे डाल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ कर क्या रहे हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 का जो आंसर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, पहले ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 परफॉर्म होगा और फिर उसका टाइप कन्वर्जन किस में होगा, फ्लोट के अंदर होगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ए प्लस बी इज इंटीजर और उनको डिवाइड बाय 2 किया यानी वो भी एक इंटीजर है, तो इसका डिवीजन ही आंसर क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो यहीं पे ट्रंकेट हो गई वैल्यू, जो 5.5 था ना वो यहीं पे ट्रंकेट हो गया और वो यहाँ पे निकल के क्या आया, 5 आया। अब उस 5 को आप फ्लोट में कन्वर्ट भी कर लोगे तब भी वो क्या होगा, 5 ही रहेगा, बिकॉज 5.5 तो यहीं पे लॉस्ट हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एटलीस्ट इनमें से किसी एक को बनाना है, यानी आप ये भी कर सकते हो, FLOAT डॉट ए प्लस बी, ये भी कर सकते हो आप। इसमें क्या किया आपने, ए और बी का जो एडिशन हुआ उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, यानी ए और बी का एडिशन कितना हुआ, सपोज 11 हुआ, तो आपने उसको कितना कर, ओके, इज माई वॉइस इज नॉट क्लियर? Is my voice is not clear to anyone other than Tanu? मेरी आवाज सर अब प्रॉपरली आ रही सही आ है? रहा है, पहले नहीं आ ओके, रहा। पहले बीच बीच में कर रही थी आप। ओके ओके, तो मुझे बता दिया करो, है ना, यू कैन इंटरप्ट मी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सुनाई नहीं देगा तो फिर लेक्चर का मतलब नहीं है ना, तो यू इंटरप्ट मी। फाइन, सो what I was saying that this float a plus b will also work. Why? Because आपने क्या किया, a और b को ऐड किया जिसका आंसर क्या है, 11 आया। 11 को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर गया, तो that becomes 11.0। अब फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर इज इन फ्लोट। ओके, तो हमेशा क्या होता है, दोनों में से जो बड़ा डेटा टाइप होता है यानी जिसे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, रिजल्ट हमेशा उस डेटा टाइप में आता है। फाइन, so to get the right answer from this program, we have to use the type conversion. Similarly, we can also see the program that is जो वहाँ बना हुआ है, okay, in this program we need to calculate the simple interest. In simple interest, this is principal rate and time has been given, and this simple interest can be calculated like this. Fine, no problem in this. But let me take this float not available here. Okay, if I don't typecast this time t, okay, then what will happen? Okay, can anyone estimate the answer of this? PRT by 100 करके निकालना आंसर कितना आ रहा है? PRT by 100 करके आंसर निकालना।
कितना आया? निकाला क्या? सर 58240। ओके, सो निकाला इसने 5, कितना आ रहा है? 5, 8, 82.40 सर 0.40 तो इतना लिख ले, 40 पैसे और आ गए। ठीक है, तो 582.0 आंसर आना चाहिए था। और आंसर क्या आया है? सिर्फ 582 आया है। तो कैन यू सी कि डेसिमल ट्रंकेट हो गया है ना? ट्रंकेट मतलब हट गया। तो क्यों हुआ? बिकॉज देखो, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ठीक है, मल्टीप्लाइड, द रिजल्ट इज इंटीजर, it is divided by another integer, so the result is an integer. And when this integer, okay, अगर इनका डिवीजन फ्लोट में भी आना होता तब भी आंसर किस में आएगा? इंटीजर, बिकॉज सारे के सारे क्या है इसके अंदर? इंटीजर है। तो इसका मतलब इनका आंसर भी किस में आएगा? इंटीजर के अंदर आएगा। ठीक है, और अब हमें किस में चाहिए? फ्लोट में चाहिए, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो फ्लोट में आ सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. So that is why to get the answer in float, we have to convert at least one of the variable. Suppose I convert this. पहले t convert हुआ था ना, मैं तुम्हें बताने के लिए r को convert कर देता हूँ अभी, है ना? So I have to convert at least one of the variables to get the right answer. Okay. So can you see the answer? Yes. Fine. So this is the effect of the type conversion and type casting. So the automatically जो इंटीजर 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 का इंटरेक्शन था और उसके बावजूद आंसर फ्लोट में आना चाहिए था बट आंसर इंटीजर में आ रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइप कन्वर्जन, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है। ठीक है, यानी इंटीजर 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 का इंटरेक्शन किया आपने तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ओके, बट अगर आपको स्पेसिफिकली कहीं पे ये नहीं चाहिए केस, तो आपको क्या करना पड़ता है? टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, यानी आपको स्पेसिफिकली टाइप्स बताने होंगे कि हमें किस टाइप का आंसर चाहिए। तो दिस टाइप कास्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर हाँ बोलो। सर आपने जो टाइम लिया था वो इंट में लिया था, उसके बाद में जब कैलकुलेशन की तो वो फ्लोट में आया, तो सर एरर नहीं होगी? नहीं, कहाँ हुई? एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, देखो टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। आई थिंक तुम लोगों ने सी के अंदर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि टाइप कास्टिंग क्या पढ़ा था। इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक, हम लोग सी में पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। ठीक है, देखो होता क्या है, आपने डिक्लेयर किया इंटीजर, है ना, और इंटीजर में सपोज क्या डिक्लेयर किया? टाइम। फाइन, सो जो मेमोरी क्रिएट होती है तो एक्चुअली इसका कितना रहता है? ये टाइम नाम का वेरिएबल बन गया और ये 4 बाइट्स की मेमोरी हो गई, यानी एक इंटीजर है ये। ठीक है, और अगर हम इसका वैल्यू देते हैं कुछ भी, टाइम इक्वल्स टू 5, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, बट ये स्पेस कितना लेती है? 4 बाइट्स स्टोर होने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा डाउट ये है कि सर अगर हमने इसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्लोट के जैसे यूज कर लिया, सो दिस डज नॉट मेक्स एनी एरर, बिकॉज जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो नहीं छिड़ती है। होता क्या है, अ न्यू वेरिएबल और अ न्यू प्लेस इज क्रिएटेड, टेम्पररी प्लेस क्रिएट करी जाती है जो आपका जो टाइप कास्टेड डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसके बराबर होती है। ठीक है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये जो 5 वैल्यू है ना, ये 5 वैल्यू 8 बाइट में रिप्रेजेंट कर दी जाती है। किस में रिप्रेजेंट कर दी जाती है? 8 बाइट्स में। तुम्हें पता है ना, एक नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस नंबर का 4 बिट इक्विवेलेंट भी हो सकता है, 4 बाइट इक्विवेलेंट भी हो सकता है, और इसी नंबर का 8 बाइट इक्विवेलेंट भी हो सकता है। होगा क्या, ये आपकी जो शुरू की 4 बाइट्स है उनमें तो वैल्यू होगा, और जो हायर की 4 बाइट्स है वो सारी क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 5 का बाइनरी।
फाइन. Yes, sir. Okay. So let us move on the next topic, that is function template. अब देखो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है ना, सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन का क्या बनाना है, टेम्पलेट बनाना है. ओके, सो आई एम डायरेक्टली वर्किंग फ्रॉम द प्रोग्राम हेयर. क्या करते हैं, देखो एक प्रोग्राम देखो यहाँ पे, ये क्या करने के लिए प्रोग्राम है, स्वैप करने के लिए प्रोग्राम है. स्वैप जानते हो तुम, वैल्यूज को इंटरचेंज करना होता है. एंड स्वैपिंग ऑफ इंटीजर, इंटीजर की करी है, कैरेक्टर की करी है और फ्लोट की करी है, तीनों की स्वैपिंग करी. तो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट की स्वैप करने के चक्कर में व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव टू क्रिएट 3 फंक्शंस. ये फंक्शन नंबर 1 बनाना पड़ा, फंक्शन नंबर 2 बनाना पड़ा और फंक्शन नंबर 3 बनाना पड़ा. क्यों? क्योंकि ये किसके लिए है, दिस इज फॉर इंटीजर्स, this is for characters and this is for floats. ठीक है, यहां पे क्या किया, ए और बी इनपुट में लिया, उनको स्वैप कॉल कर दिया, कैरेक्टर इनपुट में लिए, ठीक है, देन उनको कैरेक्टर इनपुट में लिए, उनको स्वैप कॉल कर दिया, फ्लोट इनपुट में लिए एंड फ्लोट को स्वैप कॉल कर दिया. तो क्या होगा, with these this will go to the function number 1. Okay, this will go to the function number 2 and this will go to the function number 3. यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कुछ भी नया काम नहीं किया है. ठीक है, जो नया काम है ना वो एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे कॉल बाय कौन सी है, ये कैन यू टेल मी किस तरह की कॉल है ये, कॉल बाय Reference. वेरी नाइस, कॉल बाय रेफरेंस. अब रेफरेंस पहले भी हम लोग काम में लेते थे, बट यहाँ पे रेफरेंस का सी प्लस प्लस के अंदर मीनिंग अलग होता है. रेफरेंस के अंदर यहाँ पे ये रेफरेंसेस हैं, these are integer references, these are character references and these are float references. ओके, किसी को ये डाउट तो नहीं है सर इनके सबके नाम ए बी कैसे कर दिया आपने, किसी को ये डाउट तो नहीं है, हो सकते हैं ना ए बी नाम, बिकॉज सबके स्कोप अलग अलग है. These A and B are local to this particular swap. These A and B are local to this swap, and the float A and float B are local to this swap. Fine. बढ़े आगे, इसमें क्या डिसएडवांटेज लग रहा है तुम्हें, नोटिस द कोड ऑफ ऑल द फंक्शंस. अगर हम कोड की बात करें तो लॉजिक जो है ना, लॉजिक ऑफ ऑल द फंक्शंस इज सेम. दिख रहा है आप लोगों को, लॉजिक ऑफ all the 3 swaps are same, but due to the difference in the data type, what we have to do, we have to define functions in 3 different ways. करना पड़ा ना. अब ये तो क्या है, बहुत छोटा सा काम है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है सर कोई बात नहीं 3 बार कर दिया तो कर दिया ना, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना, हम तो इतना तो हम टाइप कर ही सकते हैं. बट व्हाट अबाउट जिनके अंदर 3 लॉजिक सेम हो, है ना, 2 या 3 या 4 फंक्शंस के अंदर लॉजिक सेम हो बट पैरामीटर का टाइप डिफरेंट हो, ऐसे केस के अंदर, और फंक्शन की लाइंस जो है वो 1000 लाइंस है, यानी 1000 लाइंस का लॉजिक है, बट उनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनपुट डेटा टाइप का डिफरेंस है. ओके, ऐसे केसेस के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट. ओके, so instead of repeating the definition again and again for different types of variables, what we do, we create a template, fine, template and class T. Okay, template class T, this is the syntax to create a template. Okay, तो यहाँ पे क्या किया, एक T नाम का, ऐसे मान लो कि एक जगह बना दी, एक T नाम का एक डेटा टाइप बना दिया जो क्या है, खाली है ना, टेम्पलेट है. मतलब टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, ये इसको आप जो भी डेटा टाइप दोगे ये उसको ले लेगा.
ओके, तो यानी यहाँ पे जो हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट लिख रहे थे, नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली। ये लिखा होता या फिर ये लिखा होता। Okay, instead of that, what we have written t ampersand x and t ampersand y. So this t is nothing but a template class, and you have to declare a template class t like this. Okay, यहाँ पे हमने t बनाया है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, a b c d x y z, एंड इवन कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, एंड इसमें देखो, जब हम लोग अंदर लॉजिक के अंदर थे तो सारी लाइंस में सिर्फ ये लाइन डिफरेंट है, लाइन नंबर 5, 12 और 19। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन 5, 12 एंड 19? ओके, सो ओनली द डिफरेंस अकर्स इन दिस लाइन, बट अगर हम उसे कॉमन कर दें, यानी कि उन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट की जगह क्या लगा दें, टी लगा दें, तो वी कैन यूज सिंगल फंक्शन for 3 different data types. Single function for 3 different data types. Okay, and while calling का लॉजिक सेम है। यहाँ पे आपने क्या लिए, इंटीजर इनपुट में लिए, पहली बार कॉल किया, कॉल करने पे ये दोनों क्या जा रहे हैं, इंटीजर इंटीजर, तो ऑटोमेटिकली दिस t will be replaced by integer and this t will also be replaced by integer. Getting my point? अभी एक चीज मैंने नहीं बताई है ना, ये इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले पुराने प्रोग्राम से डिफरेंस समझ लो। सिमिलरली यहाँ पे भी कैरेक्टर देखो, यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह से कॉल करी थी, 1 2 3 कॉल नंबर, लाइन नंबर 29, 34 एंड 39, लाइन नंबर 29, 34 एंड 39। यू कैन सी दैट 3 स्वैप की कॉल थी, यहाँ पे भी स्वैप की कॉल करी हमने 3 बार, ठीक है। यहाँ पे दोनों इंटीजर हैं a और b, इसलिए क्या हो गया, ये इंटीजर इंटीजर हो गया। यहाँ पे कैरेक्टर कैरेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, इस t को किस में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर में, इस t को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर में, और सिमिलरली ये t भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर में। ठीक है, कोई डाउट? Similarly, this c and d will be converted into float, or they are in the float, so that is why this t will convert into float. All the t's will convert into the float. So this is call number 1, call number 2 and call number 3, and all of these calls will be handled by the same function. Okay, so can you read this line? Function with same logic, important thing is this, but difference in type of parameters only can be implemented through concept of function templates. Okay, so ध्यान रखना है, for using function templates all the functions must have the same logic, but only difference in the type of parameters. A template function is internally generated by a compiler as an abstraction to the user. So this also works for the abstraction. हमने जो concept पढ़ा है इसमें data hiding होती है, तो देखा जाए ना तो क्या हुआ, यहाँ पे तो यूजर ने क्या किया, a और b दिया, वो a और b क्या थे, इंटीजर इंटीजर थे, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने क्या किया, इस t को, इस कैपिटल T को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज यूजर को ये खुद को कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, ये किसने किया, कंपाइलर ने, ठीक है। कंपाइलर इटसेल्फ कन्वर्ट्स दिस T into integer, okay, and similarly
लाइन नंबर 21 में जब दो कैरेक्टर्स कॉल किए तो दिस टी इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर. Okay, fine. So here you can see that it also helps in polymorphism. याद आ रहा है कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म में? Yes. A single The multiple forms. single thing shows multiple forms. Fine. So single thing कौन है यहाँ पे? स्वैप. एंड स्वैप इज शोइंग मल्टीपल फॉर्म्स. कैसे? अगर इंटीजर के साथ में कॉल किया तो ये इंटीजर के लिए फंक्शन बन जाएगा, कैरेक्टर के साथ में कॉल किया तो कैरेक्टर्स के लिए बन जाएगा, और फ्लोट के साथ कॉल किया तो फ्लोट के जैसा बन जाएगा. सो जो भी डेटा टाइप पैरामीटर का यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन, कंपैटिबल फंक्शन जो है वो चूज कर लिया जाता है. ठीक है. सो दैट इज वर्क्स ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. Okay, and data types are not known until the function is invoked, है ना. So क्या होता है, नॉर्मली जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है स्वैप के अंदर, उसमें x, y, t इनका कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं है ना. इनका क्या डिफाइंड है? सिर्फ एक टेम्पलेट डिफाइंड है. अब जब भी t का एक कोई टेम्पलेट असाइन होगा तो जितने भी t हैं उन सब में सेम टेम्पलेट असाइन होगा. ओके. आप मल्टीपल टेम्पलेट्स भी एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, मल्टीपल टेम्पलेट्स. ठीक है. इसको हम लोग चला के देखें कंपाइलर पे. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. इसको चला के देखें हम लोग. अभी अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? Yes. So this is the function which is originally existing. आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Fine. So this is the program for function template. And if I execute it, so enter two integers. Suppose I am entering 2 space 4, then I enter. You can see that the output is swapped 4 2. Okay. Now if I input two characters f space y, then you can see that they are swapped yf. And if I enter two floats 5.4 and 8.9, so you can see that they are also interchanged. Fine. Okay. Now one more thing that you should notice, that I have written this. If I remove this, now let us see होता क्या है ना. Can you see the error? Call of overloaded swap integer is ambiguous. Okay. Why it is saying ambiguous? Because C++ also has a inbuilt function whose name is swap. समझ रहे हो? C++ में एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है जिसका नाम होता है स्वैप. तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? स्कोप रेजोल्यूशन करना पड़ेगा. स्कोप रेजोल्यूशन करते ही क्या मतलब हुआ इसका? इस प्रोग्राम का स्वैप. समझे? If I don't write this, compiler thinks that this swap is, compiler को लगता है ambiguous का मतलब क्या होता है? Not clear. Okay, it has two meanings. So swap का दूसरा मीनिंग क्या हुआ? एक मीनिंग तो ये ऊपर डिफाइन है, ठीक है. And what is the other meaning? That is the inbuilt function whose name is swap. So to resolve this scope, what I do, I place the scope resolution operator
in front of this swap. And what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्वैप है ये कौन सा वाला स्वैप है, ये कंपाइलर को क्या बताता है कौन सा वाला स्वैप है जो इस मेन के अंदर अवेलेबल है. ओके, और मेन के अंदर कौन अवेलेबल है, जो कि ग्लोबली डिफाइंड है, ये वाला. आगे बात समझ में? यू गॉट माई पॉइंट? ये प्रॉब्लम स्वैप के साथ में इसलिए आई है बिकॉज स्वैप इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन लाइब्रेरीज. ओके, एनी डाउट टिल हियर? सर हाँ बोलो. सर सी आउट के अंदर ना आपने ये करली ब्रेसेस के लिए, करली ब्रेसेस में ये एंगल ब्रेसेस जैसे CH1 एंड CH2. यहाँ पे लाइन नंबर बोलो, लाइन नंबर. सर लाइन नंबर 14 के अंदर सर नहीं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ओके, ये कोई कारण नहीं है, डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं ना हम. दिस इज ओनली फॉर प्रिंटिंग पर्पस, है ना, प्रिंटिंग को अच्छा दिखाने के पर्पज से है बस ये. ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स. एनीथिंग रिटन इनसाइड डबल कोट्स इज नेवर अ सिंटैक्स. ये स्ट्रिंग होती है, ठीक है, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होने के लिए बनी हुई है. आउटपुट हटा दिया हमने, नहीं तो इन द आउटपुट यू मस्ट हैव सीन कि ये दोनों प्रिंट हो रहे थे, है ना. दिखाऊं? See this, can you see? Right? So just turn on your camera so that I can take attendance. Just turn on your cameras. Okay, thank you. You can join your next class. और कुछ पूछना है तो 2 मिनट पूछ लो, किसी को कुछ स्पेसिफिकली पूछना है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ना. आई थिंक हम लोग अगर 3 बजे फ्री हो तो सम ऑफ यू कैन ज्वाइन एंड शो मी योर प्रोग्राम. अगर किसी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, अभी बता रहे थे ना मेघना एंड ग्रुप जो है ना. सो 3 PM इफ यू आर फ्री देन यू कैन ज्वाइन एंड टेल मी. ओके सर, थैंक यू. हाँ ओके. चलो, ओके.